سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تنو مند آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا، احمد کمال نے جواب دیا۔ وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی سے کہا، زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دی۔ 2-4 لمحے احمد کمال کو حیرت سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا رنگ گورا دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں۔ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں، احمد کمال نے جواب دیا۔ اور تم مصر میں ہو؟ لڑکی کی آنکھیں ابل پڑیں۔ وہ اس قدر گھبرائی جیسے بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھی۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل تو کر لیا، لیکن وہ بہت ہی خوف زدہ تھی، کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور ایسے دلگداز جسم والی
लड़की मामूली लड़की नहीं, मिस्र के शीशे में ऐसी फरंगी लड़की आ सकती थी? इसने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो काफ़िले से बिछड़ गई है, आंधी में घोड़ा बेलगाम हो गया था। अहमद कमाल ऐसे जवाब से मुतमिन नहीं हो सकता था। इसने 3-4 और सवाल किए तो लड़की के होंठ कांपने लगे। अहमद कमाल ने कहा, अगर तुम ये कहती कि तुम अगवा की हुई लड़की हो और आंधी ने तुम्हें चढ़ा दिया है तो शायद मैं मान जानता। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। इतने में सिपाही ने जो अहमद कमाल के साथ था खैमे का पर्दा हटाया और एक थैला और एक मशकीज़ा अहमद कमाल को देकर कहा, ये इस लड़की के घोड़े की जीन के साथ बंधे हुए थे। अहमद कमाल थैला खोलने लगा तो लड़की ने घबरा कर थैले पर हाथ रख लिया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। अहमद कमाल ने थैला इसे देकर कहा, लो खुद खोल कर दिखा दो। लड़की की ज़बान जैसे गुम हो गई थी। इसने बच्चों के अंदाज से थैला पीठ पीछे कर लिया। अहमद कमाल ने कहा, ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ चली जाओ। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हें रोकूं, लेकिन एक ऐसी लड़की को जो आबादियों से दूर अकेली घोड़े पर बेहोशी की हालत में भटकती हुई पाई गई है, इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरा इंसानी फ़र्ज़ है। मुझे अपना ठिकाना बता दो, मैं तुम्हें अपने सिपाहियों के साथ हिफाजत से पहुंचा दूंगा। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें मुश्तबा लड़की समझकर काहिरा अपनी हुकूमत के पास भेज दूंगा। तुम मसरी नहीं हो, तुम सूडानी नहीं हो। लड़की के आंसू बहने लगे। वो जिस मुसीबत से गुजर कर आई थी, इसकी दहशत और हौलनाकी इस पर पहले ही गालिब थी। इसने थैला अहमद कमाल के आगे फेंक दिया। अहमद ने थैला खोला तो इसमें से कुछ खजूरें, 2-4 छोटी मोटी आम सी चीज़ें निकली और एक थैली निकली। ये खोली तो इसमें से सोने के बहुत से सिक्के और इनमें सोने की बारीक सी जंजीर के साथ छोटी सी स्याही लकड़ी की स्लेब निकली। अहमद कमाल इससे यही समझा कि लड़की ईसाई है। इसे गालिबन मालूम नहीं था कि जो ईसाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सलेबी लश्कर में शामिल होता है, वो एक स्लेब पर हलफ उठाता है और छोटी सी एक स्लेब हर वक्त अपने पास रखता है। अहमद कमाल ने कहा कि इस थैले में मेरे सवाल का जवाब नहीं। अगर मैं ये सारा सोना तुम्हें दे दूं तो मेरी मदद करोगे? लड़की ने पूछा, कैसी मदद? मुझे फ़लस्तीन पहुंचा दो। लड़की ने जवाब दिया, और मुझसे कोई सवाल ना पूछो। मैं फ़लस्तीन तक भी पहुंचा दूंगा, लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगा। अगर मुझसे कुछ भी ना पूछो तो इसका अलग इनाम दूंगी। वो क्या होगा? घोड़ा तुम्हें दे दूंगी। लड़की ने जवाब दिया, और 3 दिनों के लिए मुझे अपनी लौंडी समझ लो। अहमद कमाल ने इससे पहले हाथ में कभी इतना सोना नहीं उठाया था और इसने ऐसे हैरान कुन हुस्न और जिस्म भी नहीं देखा था। इसने अपने सामने पड़े हुए सोने के चमकते हुए टुकड़ों को देखा, फिर लड़की के रेशम जैसे बालों को देखा जो सोने के तारों की तरह चमक रहे थे। फिर इसकी आंखों को देखा जिनमें वो तिलस्माती चमक थी जो बादशाहों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया करती है। वो तनोमंद मर्द था, कमानदार था, इन दस्तों का हाकम था जो सरहद पर पहरा दे रहे थे। इसे रोकने, पूछने और पकड़ने वाला कोई न था, मगर इसने सिक्के थैली में डाले, स्लेब भी थैली में रखी और थैली लड़की की गोद में रख दी। क्यों? लड़की ने पूछा। ये कीमत थोड़ी है? बहुत थोड़ी, अहमद कमाल ने कहा। ईमान की कीमत खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अहमद कमाल ने इसे बोलने न दिया और कहा, मैं अपना फ़र्ज़ और अपना ईमान फ़रोख्त नहीं कर सकता। सारा मिस्र मेरे एतमाद पर आराम की नींद सोता है। 3 महीने गुजरे, सूडानियों ने कायरा पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर मैं यहाँ ना होता और अगर मैं इनके हाथ अपना ईमान फ़रोख्त कर देता तो ये लश्कर कायरा में दाखिल होकर तबाही बर्पा कर देता। तो मुझे इस लश्कर से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आती हो। क्या तुम जासूस नहीं हो? नहीं, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें आंधी ने किसी जालिम के पंजे से बचाया है या तुम आंधी से बचकर निकली हो।
लड़की ने बेमानी सा जवाब दिया तो अहमद कमाल ने कहा, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कौन और कहाँ से आई हो। मैं कल तुम्हें काहिरा के लिए रवाना कर दूँगा। वहाँ हमारा जासूसी और सुराग रसानी का एक महकमा है, वो जाने और तुम जानो, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। अगर इजाज़त दो तो मैं इस वक्त ज़रा आराम कर लूँ। लड़की ने कहा, कल जब काहिरा के लिए मुझे रवाना करोगे तो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ। लड़की रात भर की जागी हुई और दिन के ऐसे खौफनाक सफ़र की थकी हुई थी, लेटी और सो गई। अहमद कमाल ने देखा कि वो नींद में बड़बड़ाती थी, बेचैनी में सर इधर उधर मारती थी और ऐसे पता चलता था जैसे ख्वाब में रो रही हो। अहमद कमाल ने अपने साथियों को बता दिया था कि एक मशकूक फ़िरंगी लड़की पकड़ी गई है जिसे कल काहिरा भेजा जाएगा। इसके साथी अहमद कमाल के किरदार से वाकिफ़ थे। कोई भी ऐसा शक नहीं कर सकता था कि इसने लड़की को बदनीयती से अपने खेमे में रखा है। इसने लड़की का घोड़ा देखा तो वह हैरान हुआ, क्योंकि घोड़ा आला नस्ल का था, और जब इसने ज़ैन देखी तो इसके शकूक रफ़ा हो गए। ज़ैन के नीचे मिस्र की फ़ौज का निशान था। ये घोड़ा अहमद कमाल की अपनी फ़ौज का था। हबशियों ने आंधी की वजह से ताक़ुब तर्क कर दिया था। वो वापस जिंदा पहुंच गए थे। पुरोहित ने फ़ैसला दे दिया था कि लड़कियां आंधी में मारी गई होंगी, लिहाजा ताक़ुब में किसी को भेजना बेकार है। वक्त भी बहुत गुजर गया था, लेकिन रजब पर आफत नाज़ल हो रही थी। इससे हबशी बार बार यही एक सवाल पूछते थे, लड़कियां कहाँ हैं? और वो कसमें खा कर कहता था, मुझे मालूम नहीं। हबशियों ने इसे अज़ियतें देनी शुरू कर दी। तलवार की नोक से इसके जिस्म में ज़ख्म करते और अपना सवाल दोहराते थे। हबशियों ने इसके साथियों को भी दरख्तों के साथ बांध दिया और इनके साथ भी यही ज़ालिमाना सलूक करने लगे। रजब को खुदा अपनी कौम और अपने मुल्क से गद्दारी की सज़ा दे रहा था। रात को भी इसे न खोला गया, इसका जिस्म छलनी हो गया था। अहमद कमाल के खेमे में लड़की सोई हुई थी और सूरज गुरूब होने से पहले जागी थी। अहमद कमाल ने इसे खाना खिलाया, इसके बाद वो फिर सो गई। इससे 2-3 कदम दूर अहमद कमाल सोया हुआ था। रात गुजरती जा रही थी, खेमे में दिया जल रहा था। अचानक लड़की की चीख निकल गई। अहमद कमाल की आंख खुल गई। लड़की बैठ गई थी, इसका जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर घबराहट थी। अहमद कमाल इसके करीब हो गया। लड़की तेज़ी से सिरक कर इसके साथ लगी और रोते हुए बोली, इनसे बचाओ, वो मुझे मगरमच्छों के आगे फेंक रहे हैं, वो मेरा सर काटने लगे हैं। कौन? वो बुड्ढे हबशी। लड़की ने डरे हुए लहजे में कहा, वो यहाँ आए थे। अहमद कमाल को हबशियों की कुर्बानी का इल्म था। इसे शक हुआ कि इसे शायद कुर्बान करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसने लड़की से पूछा तो लड़की ने बाजू अहमद कमाल के गले में डाल दिए, कहने लगी, मत पूछो, मैं ख्वाब देख रही थी। अहमद कमाल देख रहा था कि वो बहुत ही डरी हुई है। इसने इसे तसल्लियाँ दी और यकीन दिलाया कि यहाँ इसे उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। लड़की ने कहा, मैं सो नहीं सकूँगी, तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकते, मैं अकेली जाग नहीं सकूँगी, मैं पागल हो जाऊँगी। अहमद कमाल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जागता रहूँगा। इसने लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, जब तक मेरे पास हो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। इसने इस पर अमल भी करके दिखा दिया। लड़की के साथ इसने हबशियों के मुतल्लिक या इसके मुतल्लिक कोई बात न की न पूछे। इसे तुर्की और मिस्र की बातें सुनाता रहा। लड़की इसके साथ लगी बैठी थी। अहमद कमाल का लबो लहजा शगुफ्ता था। इसने लड़की का खौफ दूर कर दिया और लड़की सो गई। लड़की की आंख खुली तो सुबह तुलू हो रही थी। इसने देखा कि अहमद कमाल नमाज पढ़ रहा था। वो इसे देखती रही। अहमद कमाल ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर लीं। लड़की इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठी रही। अहमद कमाल फारिग हुआ तो लड़की ने पूछा, तुमने खुदा से क्या मांगा था? बदी के मुकाबले की हिम्मत। अहमद कमाल ने जवाब दिया, तुमने खुदा से कभी सोना और खूबसूरत बीवी नहीं मांगी?
یہ دونوں چیزیں خدا نے بغیر مانگے مجھے دے دی تھیں، احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے۔ یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے جب اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، اب میں آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں کہ میں اب کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، احمد کمال نے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ اٹھو، احمد کمال نے کہا، یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔